Hi everyone. I most welcome you all in my official YouTube channel Agriculture Varsity, and today we will discuss here some important information about agriculture. Okay, so we will start the important points about agriculture, and today onwards we will daily come up with some competitive classes videos, okay, in a short way and in a best way. So let's start without wasting time. What is the first video? What is the right content? Let's see. तो इस तरह से हम अब डेली आपके सामने प्रेजेंट होंगे अपने कुछ कंपटीशन लेवल की वीडियो के साथ, जिसमें रोज जुड़ी होंगी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो हम डेली यहाँ पर पढ़ेंगे और कुछ ना कुछ चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे। So today we will complete about what is agriculture, what is agronomy, what is crop, climate, what is weather, what is microclimatology, and structure of atmosphere. That is the very important part of this video, structure of atmosphere. तो सबसे पहले कुछ हम बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की। So agriculture comes from the Latin word, and that is mean agric and cultura. So agric means soil and plus cultura. Cultura means to manage, okay, to manage the soil and management of the soil. So that is derived from Latin words agric, soil, and cultura means cultivation, an activity of human to cover primary aims like food, fiber, fuel, etc. by optimum use of terrestrial resources is called as agriculture. Example: crop production, horticulture, agronomy, pomology, animal husbandry, apiculture, sericulture, vermiculture, etc. तो यहाँ पर हम बात करें कि कृषि विज्ञान क्या है, तो ये लैटिन के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो एग्रिक, एग्रिक का मतलब होता है सॉयल, एंड कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन, यानी कि जमीन का खेती के लिए उपयोग करना, वो भी किन चीजों को पूरा करने के लिए, अपने प्राइमरी यानी कि प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। जो कि यहाँ पे प्राथमिक आवश्यकताएं हमारी क्या है, भोजन है, ठीक है, कपड़े पहनना है, ठीक है, तो कपड़ा है, और ईंधन प्राप्त करना है। सो इन प्राइमरी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम भूमि का प्रयोग करके उस पर खेती करते हैं, या उसको किसी भी तरह खेती के पर्पज से यूज करते हैं। ये सारा कुछ एग्रीकल्चर में आ जाता है, जिसके यहाँ पर एग्जाम्पल भी हैं: horticulture, crop production, agronomy, pomology, animal husbandry, apiculture, sericulture, and vermiculture, etc. The next is agronomy. So what is agronomy? Let's see. So agronomy comes from the Greek word. Okay, it's made by the using two combination of words of Greek. So first is agros plus nomos. What is the playlist name? Okay, it's also playlist name of this video. Agros plus nomos. So agros means field and nomos means to manage. So first you are seeing this field, and after that manage for crop production, manage for various uses. So consist of two Greek words, agros plus nomos, to manage, and agronomy is the branch of agricultural science which deals with the principle and practices of crop production for obtaining maximum economic returns from a unit of area in a definite period without deteriorating the fertility status of the soil. तो यहाँ पर एग्रोनॉमी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहले का एग्रोस एंड दूसरा है नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड यानी कि जगह या फिर जमीन, और नोमोस का मतलब होता है उसका प्रबंध करना। तो प्रबंध किस उद्देश्य से करना है हमको? क्रॉप प्रोडक्शन उगाने के माध्यम से, यानी और उससे अधिक इकोनॉमिक रिटर्न लेना। ठीक है, यानी कि आय आधारित सोर्स या फिर फसल में जो इकोनॉमिक पार्ट्स होता है उसका मैक्सिमम उत्पादन करना, ठीक है, पर एरिया, लेकिन बिना सॉइल की फर्टिलिटी स्टेटस यानी कि जो उर्वरता है बिना उसका दोहन किए। इसीलिए इसको हम एग्रोनॉमी कहते हैं। ये हमको सिखाता है कि फसल का उत्पादन कैसे करना है, भूमि का प्रबंध कैसे करना है बिना उसको हानि पहुंचाए। तो ये हमारा क्या है? सस्य विज्ञान है। एग्रोनॉमी को हिंदी में सस्य विज्ञान कहते हैं। And in a short way, we can say agronomy treats the principle and practices of crop, soil and water
मैनेजमेंट। हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमी, हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि फसल उत्पादन संबंधित कर्षण क्रियाएं तथा सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए भूमि और पानी का प्रबंध करते हुए फसलों को उगाना भी एग्रोनॉमी है, यानी कि सस्य विज्ञान है, ये हम कह सकते हैं। फिर थर्ड बात करते हैं क्रॉप क्या है। तो ये तो बड़ा इजी सा है, आप कहेंगे क्रॉप, वीट क्रॉप है ना, राई क्रॉप है, राइस भी क्रॉप है, वीट भी क्रॉप है, मेज भी क्रॉप है, सोरगम भी क्रॉप है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर अगर हम बात करें वीट, तो यहाँ पर जो आप इमेज में देख रहे हैं ये सिंगल प्लांट खड़े हुए हैं, इनको हम प्लांट कहते हैं। ये हमारी क्रॉप नहीं है। कोई भी एक पेड़ कहीं भी खड़ा होता है तो वो क्या होता है, प्लांट होता है, ठीक है। वो क्रॉप कब होता है ये हम आपको बताते हैं। सो that is a single plant, okay, that is a single plant, not a crop. It's a name of, that is a sorghum plant first, and the second one the rye plant, third one rice plant, fourth one wheat plant, fourth one maize plant, but it's not a crop. When it will be say the crop, that is crop, ऐसा हम कब कहेंगे? So a group of cultivated plant, those are grown commercially on a large scale. ये फसल तब कही जाएंगी जब इनका बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा और पौधों के कई समूह एक जगह पर लगे हुए होंगे। व्हाट इज क्लाइमेट? लेट्स स्टार्ट। So you are seeing these photos because somewhere the rain is there and somewhere very hot climate means sunlight, somewhere very storms and rainy seasons, and somewhere only ice is ice. So what is the climate? Let's see the definition. So climate is the Greek word, is a weather condition over a given region during a longest period. During a longest period, that is the climate. यानी कि एक ऐसा वेदर कंडीशन, एक ऐसा मौसम जो किसी जगह पर, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, क्षेत्र पर काफी समय के लिए या फिर काफी लंबे समय के लिए पाया जाता हो, जिसमें समय समय पर थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, लेकिन वो वहां की जलवायु कहलाता है, यानी कि क्लाइमेट कहलाता है। द नेक्स्ट इज वेदर। तो यहाँ पर हमने क्लाइमेट कंडीशंस में देखा कि इज अ वेदर कंडीशन ओवर अ गिवन रीजन ड्यूरिंग अ लॉन्गेस्ट पीरियड, यानी कि कोई मौसम या फिर कोई वेदर कंडीशन है जो कि बहुत लंबे समय तक किसी जगह पे रहता है, तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। ओके, वेदर कंडीशन ओवर अ गिवन रीजन ड्यूरिंग अ लॉन्गेस्ट पीरियड। बट व्हाट इज वेदर? दैट इज द क्वेश्चन। सो वेदर, सो it's a suddenly changes, okay, in atmosphere. Which type of changes? Let's see the definition. Weather is a condition of atmosphere at a given place at a given time, यानी कि एक निर्धारित समय पर, एक समय पर, किसी जगह पर, ये वहां की वेदर कंडीशन यानी कि मौसम कंडीशन है। एटमॉस्फेयर, वातावरण में होने वाले प्रभाव है कि तुरंत कहीं पर बारिश का मौसम बन गया, तुरंत बादल छा गए, उसके बाद तुरंत बड़ा सूरज निकल आया अगले दिन। तो ये चेंज होने वाले, चेंजेस होते रहते हैं इसमें, समय समय पर इसमें बदलाव आता रहता है मौसम में, और हर दिन का बदलाव हो सकता है या फिर कुछ घंटों के बाद भी बदलाव हो सकता है, तो इसे हम मौसम कहते हैं। लेकिन एक जैसा मौसम जब काफी लंबे समय तक के लिए ठहर जाता है तो उसे हम क्लाइमेटिक कंडीशन कहते हैं, यानी कि वहां की जलवायु कहते हैं। सो व्हाट इज द माइक्रो क्लाइमेटोलॉजी? सो माइक्रो क्लाइमेटोलॉजी डील्स विद द pertinent factors, and pertinent factors is solar radiation, temperature, wind vapor pressure, carbon dioxide of the environment in the zone line between the highest level reached by the plant and the lowest depth to which air penetrates into the soil. So what is the microclimatology? तो माइक्रोक्लाइमेटोलॉजी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये उन फैक्टर्स के साथ डील करती है, पर्टिनेंट फैक्टर के साथ, जैसे कि सोलर रेडिएशन हो गया, तापमान हो गया, ठीक है, हवा हो गई, और वाष्प का प्रभाव कितना है, ठीक है, उसका वाष्पिक दबाव कितना है एटमॉस्फेयर में। तो इन सभी बातों का हर घंटे या हर दिन के हिसाब से रिकॉर्ड रखना माइक्रो क्लाइमेटोलॉजी होती है। जैसे कि यहाँ पर इमेज में हम देख रहे हैं डायरेक्ट सोलर रेडिएशन यहाँ से आ रहा है, इसके बाद वो सोलर रेडिएशन बादलों के द्वारा इधर उधर छटक जा रहा है, फिर स्काई थर्मल रिएक्शन चल रहा है। तो इन सभी बातों का रिकॉर्ड करना माइक्रो क्लाइमेटोलॉजी होती है, जो कि इन छोटी छोटी बातों का अध्ययन करता है कि व्हाट इज द सडन चेंजेस हैपेंस इन द एटमॉस्फेयर एंड विच थिंग्स
are increasing air temperature and reducing air temperature, reflected solar radiation, means everything. That is the microclimatology. The next is structure of atmosphere. Structure of atmosphere, that is very important part of this video. Structure of atmosphere क्या है? तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, तो यहाँ पर बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर यानी कि एक जो हमारी अर्थ है, ठीक है, दैट अर्थ इज कवर्ड बाय मेनी लेयर्स इन एटमॉस्फेयर, बाय मेनी layers, and that layer is total 5, which is the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. So let's discuss about one by one. The first is troposphere zone. Okay, it's found from the 8 to 18 kilometer height, 8 to 18 kilometer height. So that is the closest and densest layer of atmosphere. Temperature decreases with altitude. Okay, temperatures decreases with altitude 6 degrees Celsius per kilometer, and all weather phenomena like rain, fog, clouds are found in that troposphere zone. And second one, 18 to 20 kilometer is between 2 kilometers, that zone between of troposphere and stratosphere, that is called the zone between of troposphere and stratosphere. And stratosphere zone started from the 20 kilometers and up to 48 or 50 kilometers it will be go. So what is the stratosphere? That is presence of ozone layer. Okay, stratosphere, it has presence of ozone layer, so is called also ओजोनोस्फेयर. इसलिए इसको ओजोनोस्फेयर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, 20 से 48 किलोमीटर तक ये फैला रहता है. दैट इज द वार्म रीजन. यूनिफॉर्म टेम्परेचर इंक्रीज विद अल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा बहुत क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है. और 48 to 50 kilometer, that zone between stratosphere and mesosphere, it's known as a between zone of stratosphere and mesosphere, that is a 48 to 50 kilometer. The next is 50 kilometer mesosphere zone. तो नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आता है mesosphere zone. 50 to 75 किलोमीटर, लगभग 50 से 75 किलोमीटर के आसपास ये फैला हुआ है. So mesosphere zone, that is the cold region and temperatures decreases with altitude. तो अगर हम इसकी बात करें तो ये ठंडा क्षेत्र है, यानी कि ठंडी लेयर है यहाँ पर, और जब हम ऊंचाई के साथ इस लेयर में बढ़ते हैं तो हमें ठंड महसूस होती है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो गिरता है. टेम्परेचर विल बी डाउन विद द एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड. And next is ionosphere zone. So 75 to 80 kilometers comes in mesosphere, but that is known as ionosphere zone. And in ionosphere zone, temperatures increase with altitude. Temperatures increase with altitudes include thermosphere and exosphere, remote sensing and radio transmissions. Okay, that all are activity because radio transmissions, remote sensings, okay, that all are included in ionosphere zone 75 to 80 kilometer. The next is thermozone. Thermosphere zone, it's about 80 किलोमीटर. थर्मोस्फेयर जोन जो है 80 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, ठीक है, और लगभग 700 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है. एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड एंड गैस लेस जोन. यहाँ पर गैसेस नहीं पाई जाती है, यहाँ से गैसेस का खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इस जोन में गैसेस नहीं पाई जाती. और थर्मोस्फेयर जोन इसको कहते हैं, ये लगभग 80 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है, लगभग 700 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है. And the last one, exosphere. So it's the exosphere is the outermost layer of the अर्थ एटमॉस्फेयर. तो ये सबसे बाहरी लेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी लेयर है, जो कि लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैली है. इट्स स्टार्ट्स एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 500 किलोमीटर और 700 किलोमीटर एंड गज आउट टू अबाउट 10,000 किलोमीटर, लगभग 10,000 किलोमीटर तक ऊपर
गई हुई है। Within the region, particles of atmosphere can travel for hundreds of kilometers in a ballistic trajectory before bumping into any other particles of the atmosphere. तो ये एक्सोस्फीयर हमारी सबसे लास्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो कि लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम अगले नेक्स्ट वीडियो इसी के साथ एग्रोमेट्रोलॉजी पर कुछ नेक्स्ट कंटेंट के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड